ગણેશ ઉત્સવ પ્રારંભ થઈ ગયો છે અને ગણેશ ઉત્સવ પર આપણે મોદક બનાવીને ખાવીને પ્રસાદ લઈને અને યોગથી બધા રોગોને કેવી રીતે મટાડવાનો, આજે શરૂઆતમાં પાકશાસ્ત્ર પછી યોગશાસ્ત્રની તરફ જઈશ. આ જુઓ, આ તો એક બાજુ આપણે ગણેશજીની આરાધના કરી રહ્યા છે, મોદક તૈયાર થઈ ગયા છે અને એની સાથે સાથે આ મોદક કેવી રીતે તૈયાર થાય છે, અમારી આ મહારાષ્ટ્રની બહેનો છે અહીંયા સેવામાં છે અને સૂજી અને થોડીક મેદા, વધારે નહીં, સૂજી અને મેદા એને આમાં પછી એને થોડીક રોટલી જેવી કરીને અને પછી આમાં ડ્રાય ફ્રૂટ છે, બધા જાત જાતના ડ્રાય ફ્રૂટ છે, બધા એ બધા અમે એમાં મૂકી દીધા છે. એ બધા જાતના ડ્રાય ફ્રૂટ્સ અમે મૂકી દીધા છે પાવડર કરીને અને એને પછી આ રોટલીમાં ભરવામાં આવે અને મોદક તૈયાર થઈ જાય. અને તો બહેનો બહુ સરસ તૈયાર કરે છે અને હું પણ અત્યારે તો યોગશાસ્ત્રની સાથે સાથે પાકશાસ્ત્રમાં પણ એક્સપર્ટ થઈ ગયો છું. આ બધાના લીધે તો આ રોટલી તૈયાર થાય, આમાં પછી આ ડ્રાય ફ્રૂટ ભરી નાખે અને ભરીને અને પછી અને સરસ રીતે આવું ડિઝાઇન તૈયાર થઈ જાય. કેવું સરસ! અને પછી એને આમ શેકવામાં આવે. આમ શેકીને આ રોટલી કરીને આમાં બધા ડ્રાય ફ્રૂટ્સનો પાવડર, એમાં પછી ખાંડ કે ગોળ કે તમે શક્કર અને હની જે તમે નાખવાનું હોય આ બધા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ એમાં મૂકી દેવાના અને કરીને પછી આવી રીતે આ સરસ ધીમે ધીમે પાક થાય. બહુ તેજ આંચ પર નહીં કરતા, ધીમે ધીમે એવી રીતે એનો પરિપાક થાય અને એ પરિપાક થઈ જાય તો પછી આવું આ મોદક તૈયાર થઈ જાય. યોગના અભ્યાસથી કેવી રીતે આપણે સામાન્ય રોગોથી માંડીને અસાધ્ય રોગોને મટાડી શકીએ એના લાઈવ એક્ઝામ્પલ્સ અમારે સાથે છે અહીંયા. અને આ બીપી, શુગર, થાઇરોઇડથી માંડીને કેવા કેવા અસાધ્ય રોગો મટાડીને અહીંયા ભેસ્યા છે, એક એકથી જાણીશ. અને એના માટે શું કરવાનું? સામાન્ય રીતે જેનાથી જે થાય. ઘણા બધા તો આમ તાડાસન પણ નહીં કરી શકાય, તાડાસન, તિર્યક તાડાસન. ચલો ખડે હો જાઓ. જે તાડાસન, તિર્યક તાડાસન પણ નહીં કરી શકાય એનો હું કહું છું તમે ફક્ત આ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ જ કરી લો. તાડાસન, આ તિર્યક તાડાસન આ પણ ઘણા બધાથી નહીં થાય. આ વૃક્ષાસન નહીં થાય આવી રીતે, આ વૃક્ષાસન જ નહીં થાય ઘણા બધાથી. વૃક્ષાસન પછી ગરુડાસન તો વધારે કઠિન થઈ જાય. सूर्य नमस्कार ये पण વધારે कठिन થઈ जाता. सामान्य सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके और सूर्य नमस्कार, थोड़े आसन बैठ के, थोड़े आसन उल्टी सीधी लेट के हम बताएंगे. लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर के कैसे कैसे बड़े बड़े रोग योग से मिटते, मैं लाइव एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ. बंसल जी कितना वजन था? मेरा साहब 101 किलो वजन था. क्या नाम है? MK अग्रवाल. अग्रवाल साहब 101 किलो था और 96 हो गया 5 दिन के अंदर. ये पहला चमत्कार है बाबा जी का. 5 दिन यहाँ पे आने के बाद मैं सोच भी नहीं सकता हूँ 5 दिन के अंदर बाबा जी का चमत्कार. हल्का लगता हो जी, बहुत ज्यादा पेट बहुत हल्का हो गया बाबा. मैं एक्सरसाइज बहुत अच्छी कर ले रहा हूँ. बिल्कुल. कितनी है एक्चुअल है उम्र 62 बाबा. 62. देखो अब 62 की उम्र में भी अब बुढ़ापा नहीं आएगा बाबा. बाबा आपका आशीर्वाद जो है बना रहेगा. 5 दिन में 5 किलो वजन कम कर लिया. बंसल साहब को देना. ये एक दूसरा करो ऐसे जी. प्रणाम बाबा जी. प्रणाम. मुझको पिछले 25 साल से शुगर थी और 10-12 साल से मैं बहुत हाई डोज इंसुलिन और स्ट्रॉन्ग इंसुलिन की मैं डोज पर था. और 2 महीने के अंदर मैं बाद में मुझे वो इम्पोर्टेड इंसुलिन जो मुझे मार्केट से अवेलेबल नहीं हुआ और मेरा शुगर लेवल उससे कम था जो नॉर्मल उस इंसुलिन को लेने के बाद था. मैंने उसके बाद में रेगुलर योगासन किया. मैं पिछले 4 दिन से बाबा जी के सानिध्य में हूँ और अभी मेरी शुगर जिस दिन मैं आया था उस रोज़ 231 थी विद ऑल इंसुलिन मेडिसिन के अलावा. और पिछले 4-5 दिन के अंदर में मैंने 3 दिन के अंदर में राधा मैंने वो पूरी एक्सरसाइज जो बाबा जी के स्वामी जी के यहाँ पर होती है वो की और सारी थेरेपी की. पिछले 3 दिन से मेरी शुगर लेस देन 100 चल रही है. मैंने उस बीच में उसमें
कोई मैंने इंसुलिन नहीं लिया, कोई भी मेडिसिन जो मैं ले रहा था वो मैंने पिछले 3 दिन से सब रोकी हुई है। और उसके सारी बावजूद इंसुलिन और एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर दी। मधुनाशिनी और मधुग्रिट कितनी खा रहे हो? वो 2 ले रहा हूँ और उधर मधुग्रिट की और मधुनाशिनी की बस्ती ले रहे। बस्ती ले रहा हूँ। बस्ती से मुझे बहुत फायदा हुआ है स्वामी जी। अद्भुत लाभ होता है। अब ये आयुर्वेद के ज्ञात इतिहास में पहली बार डायबिटीज की बस्ती ये हमने तैयार की, नई थेरापी। સુરતથી આવું છું. હા. મને 2016થી લમ્સ ફાઇબ્રોસિસ હતો, જેનેટિક હતું. ફાઇબ્રોસિસ બહુ જ મોટી જેનેટિક બીમારી. મેરા પિતાજીને પણ હતું. हाँ, મારા genetically? हाँ, जेनेटिकली. अरे राम। मैंने यहाँ आके 80% ठीक कर लिया है. बाकी लंग ये तो फाइब्रोसिस में फेफड़ा लोथड़ा जेवा थी जाए, फेफड़े खराब हो जाते हैं लंग फाइब्रोसिस में। 80% ठीक कर लिया, 20% और ठीक गायब हो 20% वो बताया था कि 2 महीना 3 महीना और लगेगा, लेकिन मैं अभी स्वस्थ हूँ. जाए। स्वासारी गोल्ड कितना खा रहे हो? स्वासारी गोल्ड 3 टाइम खा रहा हूँ. स्वासारी गोल्ड बहुत जरूरी है। और वो लक्ष्मी विलास खा रहा हूँ और वो और भी लपेट लगा रहा हूँ. लगा रहे हो उसकी हाँ, पतंजलि बाम लपेट की। यहाँ भी लगाया, घर पे भी मैं लगाता हूँ हाँ। लपेट. और दिव्य पेय पीना दिन भर। हाँ, दिव्य पेय पी सामान्य रहा हूँ. पानी पीना मना है आपको। हाँ, दिव्य ठीक. पेय वाला ही पानी पी। हाँ, दिव्य पेय पी रहा हूँ मैं सर. લંગ ફાઇબ્રોસિસ સારું કરી લીધું। મને 20 વર્ષથી જે બીમારીઓ હતી એમાં એક હતું ડાયાબિટીસ, બીજું હતું બીપી અને ત્રીજું હતું ડિપ્રેશન. ત્રણેય બીમારીને મેં માહાત કરી દીધી છે. 40 વર્ષ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઝમાં કામ કર્યું એલોપેથીમાં, એ બધાને તિલાંજલિ આપી દીધી છે અને હવે હું આયુર્વેદિકની સહારે અને યોગાના સહારે છું. इसने तो पूरा पाड़ा ही बदल लिया। एलोपैथी में 40 साल लगाए और बीमारियां लेकर के घूमता रहता था, और अब बीपी, शुगर और डिप्रेशन 2012 में था, इसको वो भी भी माहात कर दिया. आज अच्छे से नींद लेता हूँ और डिप्रेशन की सारी दवाइयाँ खाई, लोराजेपाम, डाइजेपाम, चलो बैठ जाओ। अल्ट्राजोलम, सब दवाइयाँ खाई थी, सबको छोड़ दी थी. सब छोड़ दिया, बस अब मुझे मत छोड़ना। આ યોગ કરવાથી શું શું થાય છે ને, આ તમે આમ ધારો કે આ દરરોજ સ્વામીજી દરરોજ કે ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, ઉજ્જાઈ, અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામૃત, ગીત, શીતકારી, ચંદ્રભેદી, સૂર્યભેદી, નાડી શુદ્ધિ, આ બધા પ્રાણાયામ કરો, બધા સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરો, આસનો કરો, એનાથી શું થાય છે એટલા માટે હું દરરોજ લાઈવ એક્ઝામ્પલ સાથે તમને બતાવું છું। आपको क्या फायदा हुआ? बाबा प्रणाम। प्रणाम। मेरे को डायबिटीज था कम से कम 15 साल से। 15 साल से? 15 साल से। अभी 5 साल से मैं आपके योगा, प्राणायाम ये सब कर रहा हूँ, उससे मेरे को आराम है। और 5 साल से मैंने दवा छोड़ रखी है। 5 साल से पूरी दवा बंद? और हर 6 महीने पे डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर बोलता है अब दवा आपको नहीं लेनी है डायबिटीज की। ये लो, पूरी दवा बंद जी। ना एलोपैथी के ना आयुर्वेद की जी कोई। और प्रमोद खंडेलवाल जी ने पूरा खंड खंड कर दिया है। और 70 साल की उम्र है मेरी। 70 साल? 70 साल 1951 बॉर्न। क्या बात है। हाँ मस्त है। 70 साल एक लोग महीना। बोलते थे बुढ़ापे का सहारा लड़का है, कोई कहता था लड़का नहीं हुआ तो लड़की है, लड़का लड़की भी नहीं तो बोले लकड़ी है। लकड़ी की कविता पढ़ी थी हमने, बच्चे थे ना तब। वो किसकी है, हरिवंश की है या पता नहीं किसकी कविता पढ़ाई जाती थी स्कूल में। बाबा जी बच्चे आज भी कहते हैं कि आप हमारे सहारा हो। तो अब 70 साल की उम्र में एक योग का सहारा, गुरु का सहारा मिल गया और सारा रोग कट गया। चलो जोरदार काम कर लिया खंडेलवाल साहब आपने। 5 साल से कोई दवाई नहीं और 100% एकदम परफेक्ट। अब बीपी की भी छूट जाएगी। बस वही छोड़ा नहीं है मुझे। बस हाँ। और मुक्तावटी बीपी गिर थोड़ी दिन ले लेना, बाद में वो भी छूट जाएगी। जी बेटा। मुझे 11 साल से दोनों किडनी में स्टोन रहते थे, तो चलो मंडू का आसन निकल जाते थे, बनते रहते थे। फिर मैंने आचार्य बालकृष्ण जी का देसी नुस्खा अपनाया। 1 मुट्ठी जौ की दाल, 1 मुट्ठी कुल्थी की दाल, हाँ। वो रात को हांडी में भिगोकर रखती थी 4 गिलास पानी में, और सुबह जब उसको पकाती थी 1/4 रह जाता था। फिर उसको सुबह खाली पेट, दोपहर खाली पेट और शाम को खाली पेट लेती थी। जो का और कुल्थी का सिंपल नुस्खा पूज्य आचार्य जी ने बता रखा था। कपालभाति करती थी। हाँ जी। और अब दोनों किडनी बिल्कुल ठीक है, कोई भी स्टोन नहीं है। जब भी पहले टेस्ट कराती हमेशा पथरी मिलती थी। 3-4 स्टोन आती थी और पेन बहुत ज्यादा रहता था, बहुत ही ज्यादा। मतलब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मैं क्लास ये भी बहुत नहीं बड़ी अटेंड बात कर है। पाती। खाली जो और कुल्थी जो हम हाँ जी। बताते रहते हैं कि जो का उससे प्रयोग जड़ करो। कट गई।
जड़ कट गई आप, हाँ जी, नहीं तो बार बार फॉर्मेशन होता मैं रिपोर्ट भी लाई हूँ स्वामी जी। है। रिपोर्ट लेके आई है हाँ जी, कि कल कोई को पूछने लगे तो हाँ जी, ऐसे बोल रही अभी होंगी बाबा जनवरी की जी, है, बिल्कुल नॉर्मल। बाबा जी की रिपोर्ट है। चेली होगी, पड़ोस से आई है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल कितनी रिपोर्ट। उम्र है बेटा तुम्हारी? 33। मम्मी ने प्राणायाम शुरू किया, अनुलोम विलोम और कपालभाति। बादाम अखरोट और वो कोई हाँ जी। मेधावटी आदि भी ली? हाँ जी, और पापा जी और मम्मी जी दोनों करते थे। लो, पापा मम्मी करते थे, अब बेटी भी मम्मा से और पापा मतलब से मेरे लिए संस्कार- प्रेरणा स्रोत मेरी माता जी ही है, उन्होंने ही मुझे बताया जो अभी मेरी चलो बीमारियां उसको उनकी पीछे वजह वाले से को ठीक दो हुई। अब। इसने तो फैटी लिवर से लेकर के और जेनेटिक बीमारियों का के ऊपर बांध दिया है, जेनेटिक बीमारियों पर बांध दिया। हाँ। जी, मेरे को 19 में फैटी लीवर था और नाम बोलो अपना। बसंत गुप्ता, मैं महू से हूँ। फैटी लीवर 2018 में डायग्नोसिस हुआ था, स्टेज 2 का। मैंने प्राणायाम और योगाभ्यास आपके चैनल पे देख के किए और उससे बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और मुझे मेरे घर पर मेरे पिताजी डायबिटीज और बीपी की गोलियाँ खाते थे, तो मुझे नहीं हो, इसलिए मैं योगाभ्यास कंटिन्यू करता हूँ। लो, जो परिवार में प्रॉब्लम है बीपी शुगर की, उसको भी मैंने कहा बांध दिया, उसको वहीं थाम दिया। उसको कंट्रोल हो गया। नहीं तो जेनेटिक बीमारियां जीन्स में अपने आप ही वक्त के साथ एक्सप्रेस हो जाती है। जी जी, और अभी तक तो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं हुई है। वो इसको कहते हैं रोगों को की जड़ पर वार करना। कल ही तो मैंने- जेनेटिक स्ट्रक्चर अच्छा होता है। कल ही मैंने शुगर चेक कराई थी तो 120 आई रैंडम। चलो अब कुछ नहीं होगा तेरे को, मस्त रहे। ये बहन भी बहुत खुश है। चलो अर्धमत सेंद्राक्षर वक्रासन गोमुखासन करो। ये प्रणाम छोटे बाबा छोटे जी। अभ्यास करने। जी बेटा। मेरा नाम सुमन है, मैं जयपुर से आई हूँ। हाँ, मुझे भी जेनेटिक था थायराइड, मम्मी से, नानी से मम्मी को, मम्मी से मेरे को मिला है। तो मैंने भी उज्जयी और ना सिंहासन करके मैंने इसको कंट्रोल करा है। पहले मेरा आता था 15-16, अभी मेरा 4 के आसपास आता है। ये लो 15-16 आता था। उससे मुझे घबराहट, हाथ सुन हो जाता था बाबा जी अब मेरा। दवाई कितने दिन से बंद कर दी? 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना हो गया। यस अब थायराइड नॉर्मल। यस बस उज्जाई कितनी बार करती है बेटा? मैं कर लेती हूँ 50 से 60। हाँ, 50। क्या बात है, ये जोरदार काम है, एकदम से रोग खत्म कर दिया। सिंहासन थोड़ा कम करती हूँ, इतना नहीं, और गले में थोड़ा सा हो जाता है दर्द सा, लेकिन कर लेती हूँ फिर भी थोड़ा बहुत। तो कपालभाति और उज्जाई कभी भी कर सकते हैं, ऐसे गोमुखासन में ही कर लो। चलो अगले बेटे को देना। प्रणाम स्वामी जी। मुझे 6 साल से फैटी लीवर था और उसके कारण मेरा वेट भी 72 kg हो गया था। बाद में मैंने प्राणायाम योगा सब शुरू किया तो अभी मेरा पूरा क्योर हो चुका है और वज़न भी मेरा 58 हो गया है ऑलरेडी। और मुझे जेनेटिकली बीपी मेरे पापा को भी था, उनकी सर्जरी भी हुई है। लो मेरा भी 160-100 ऐसा आता था, लेकिन 1 साल से मैंने दवा छोड़ दिया है, मेरा अभी सभी नॉर्मल है, 130-80, 20-80 ऐसे ही आता है। जेनेटिक बीमारियों को रोक सकते हो आप, होने के बाद भी मिटा सकते हो, वो भी मैं बताता हूँ, और उनको रोक भी सकते हो। चलो उल्टे लेट जाओ मकरासन में। और फैटी लीवर बहुत बड़ी बीमारी है, तो लीवर सिरोसिस में तब्दील होकर बाद में तो बहुत कबाड़ा करता है। कैसे हुआ बेटा आपको फैटी लीवर? स्वामी जी बाहर खाना खा के, क्योंकि मैं अकेले रहता था, जॉब करता था, तो खाने में दिक्कत हो गई, उसके कारण मुझे ये हो जंक फूड फास्ट फूड भी बहुत बेकार चीज़ है। चलो बेटा ठीक। खुश रहो, अब प्रणाम छोड़ना मत योग। जी स्वामी। अगले भाई को देना। स्वामी जी मेरा नाम रविंद्र गुप्ता है, मैं लखनऊ से हूँ। मुझे पिछले 10 साल से प्रोस्टेट था और प्रोस्टेट बढ़ते बढ़ते 62 ग्राम तक हो गया था। ये मैंने 2-3 महीने में तो ठीक किया है लोगों का। ये पहला केस है मेरी लाइफ का जिसका 1 महीने में 62 से 20 आ गया। और मैंने इसका नेचुरोपैथी का सहारा लिया, आयुर्वेदिक दवा और आपके बताए हुए प्राणायाम मैं करता रहा। आयुर्वेदिक दवा में क्या क्या ले रहे हो? आयुर्वेदिक दवा में मैं लेता था गोछुराज गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी, और 2 और दवाएं लेता था, काचनार गुग्गुल और वृद्धिवादिका। ये 4 दवाएं लेता था। मुझे खुद सबसे ज़्यादा फायदा तो मुझे नेचुरोपैथी का हुआ। उसमें मिट्टी की जो पट्टी लगाते हैं और ठंडी पट्टी लगाते हैं, उससे 1 महीने में ही मेरा फ्लो एकदम नॉर्मल हो गया। मैंने जब जांच कराई तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ। यूरिन का फ्लो अच्छा नहीं था। हाँ, यूरिन मिट्टी पट्टी सामान्य बात लगती है तुमको, ये बड़ी बात कह रहे हैं। मिट्टी, मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि मिट्टी पट्टी, मुझे पहले इतना विश्वास नहीं था कि इससे इतना क्या नाम है? रविंद्र लाभ हो सकता है। गुप्ता जी। तो फिर डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने स्टेरॉइड बंद कर दिया, कहा अब आपको स्टेरॉइड ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा मुझे और 2 बीमारियां पहले 98 में हुई थी, डायबिटीज़ और अस्थमा। और मेरी तो ज़िंदगी आपके सहारे चल रही है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे बहुत परेशान हैं। एक सीपी है और दूसरे को ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हो चुकी है।
और वो बच्चा तो इस समय डिप्रेशन में चला गया था जब से कोरोना हुआ, उसको मैं अपने साथ ले करके आया हूँ इस समय। वो उसकी सर्जरी से ब्रेन ट्यूमर तो ठीक हो गया था, मगर वो एक साल से जब से कोरोना शुरू हुआ था तब से उसको डिप्रेशन होने लगा, शॉर्ट टर्म की मेमोरी कम हो गई है उसकी। तो उसके लिए मैं स्वामी जी आपसे बहुत उम्मीद लेकर के यहाँ आया हूँ। कोई ना, उससे मिल भी लेंगे, जी आशीर्वाद दे देंगे, ठीक हो जाएगा। जी है ना, योग भी करेगा, दवाई भी देगा, जी, अगले भाई को देना। ये बड़ी बात है। जो कुछ बीमारियां तो पहले ठीक कर चुके थे, और जो प्रोस्टेट जो उम्र के साथ ज़्यादातर लोगों को होता है, वैसे मुझे नहीं हुआ ना मुझे होगा, नहीं तो ज़्यादातर लोगों को प्रोस्टेट होता है। जो कपालभाति नहीं करेंगे तो होने वाला है। कल मैं यहीं से शुरू करूँगा, जो योग नहीं करेंगे उनको प्रोस्टेट होगा, बीपी होगा, शुगर होगा, थायराइड होगा, क्या हो चुका है, मोटे होंगे, गोडे घिसेंगे, फिर तड़प के मरेंगे। डराऊंगा कल, हाँ डराना पड़ता है, नहीं तो ये आदमी काबू में कहाँ आता है? जी भाई साहब। स्वामी जी, मैं हरीश खंडेलवाल नाथद्वारा से हूँ, प्रॉपर श्रीनाथ जी के धाम से। और मुझे 2 साल पहले लिगामेंट्स क्रैक हो गए थे। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था, पर मैंने थेरेपी और योगा से उसको ठीक कर लिया और आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ मैं। ये बड़ी बात है। ये पूरा लेगामेंट्स जो है, आज मैं एक पैर पे मतलब प्राणायाम भी कर सकता हूँ। हाँ, ये लेगामेंट्स हो या कार्टिलेज हो, ये दोनों रिपेयर हो जाते हैं योग से। ये तो लाइव एग्जांपल खड़ा हुआ भाई। कितने दिन में ठीक कर लिए? अरे 1 साल हो गया है। 1 साल में लगातार करते रहे। यस। और दवाई क्या ली? दवा कुछ भी नहीं ली। यदि साथ में लाक्षादी गुग्गल ले लो, गिलो ले लो, शिलाजीत ले लो। आपका सानिध्य मिला, आप जरूरत भी नहीं है। अब तो ठीक है, आप बोले तो ले लेंगे। जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ। तो और मजबूत हो जाते हैं। अगले भाई को देना। ये लो, लेगामेंट्स कार्टिलेज रिपेयर हो जाते हैं पूरे। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं अशोक गुप्ता इंदौर से बोल रहा हूँ। मेरे कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा समस्या थी। पिछले 1.5-2 साल से मैं योगा के थ्रू कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम कर लिया है। अभी पहले एलोपैथी दवाई के मेरे को डॉक्टर बोलते थे, लेकिन मैंने बंद कर दी है। अभी थोड़ी सी लिवोग्रिड लेता हूँ और बाकी ठीक हो जाता है। एकदम फिट हो गए। अलग अलग जब यहाँ लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं तो बहुत लोगों को, करोड़ों लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है। तो करोड़ों लोगों ने हमें बीमारियों सारी करी सिया नानकड़ा योग करावी ने सीधा सोई ने मरकटासन, पवन मुक्तासन, जेने कमर में दुखाव छे ए मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, शीत बंधासन, नौकासन, कट्युत्तानासन, અને જેને વજન વધારે છે અર્ધલાસન, પાદ વૃત્તાસન, દ્વિચક્રિકાસન, બાકીના મંડુકાસન, ઉત્તાન પાદાસન, નૌકાસન, સર્વાંગાસન, હલાસન, જેને જે ગમતું હોય એ કરી લે। और किस ने क्या क्या रोग मिटाए भाई? प्रणाम स्वामी जी। जी, मैं डॉक्टर विजय सरवटे मध्य प्रदेश के मंडला जिला से आया। स्वामी जी, मेरे को लाइफ स्टाइल डिजीज थी, लेफ्ट शोल्डर एथरालजिया। हाँ जी, मैं विगत 10 वर्षों से परेशान था। मैंने वहाँ लोकल ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथ का भी, और एलोपैथी अब इस समय पहली प्राथमिकता है। और उसके बाद में आज 10वां दिन हुआ स्वामी जी, 90% मेरे को लाभ है इसमें। मैं बहुत अपने आप में बहुत खुश हूँ। अब आयुर्वेद वाली पूरी प्रैक्टिस सीखो। जी, आयुर्वेद का ही हिस्सा है ये। योग जी, जी। चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, ये अलग नहीं है। जी, जी, ये मूलतः आयुर्वेद के ही घटक है। जी। ये लोगों ने ना अलग अलग पैथिया तो अलग अलग अखाड़े बना लिए थे। मैंने सारे अखाड़ों को एक कर दिया। जी, जी। हाँ? जी, अब मंडला क्या जिले ठीक हो वासियों गया? की ओर से आपको सत नमन स्वामी। बात आशीर्वाद। हाँ? और भी पीछे देना, वो कुछ भाई बहन अपनी बात कहना चाहते हैं। अनुलोम विलोम करते रहो सब। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मेरे को 1992 से बीपी की शिकायत थी। 1992 से? हाँ सर। बहुत पुराना बीपी है। और 200 तक पहुंच जाता था, ऊपर का 200, नीचे का 129 तक पहुंच गया। क्या नाम है? श्रीधर भारद्वाज। मैं दिल्ली से हूँ सर, दिल्ली पुलिस ओहो में हो। 91 में भर्ती हुआ था। इतना बीपी? हाँ सर, और मेरे को पता नहीं लगती थी कुछ भी। डॉक्टर जब चेक करते थे जब ही पता लगता था, कभी महसूस धीरे धीरे बढ़ करके इतने हैबिचुअल होगी बॉडी, नहीं तो 200 बीपी में तो आदमी चल नहीं सके। फिर मैंने वो चेक कराया तो सर मेरी रिपोर्ट तो ओके आई, लेकिन आँख की बताई सर उन्होंने कि आँख में जो तुम्हारी नस ब्लॉक हो गई, ऑपरेशन होगा। आता उसका। अब मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरा बीपी 120 और 70 और 75 है। 120 70 हाँ सर। एब्सोल्युटली राइट। और आँख से मैं जो पहले जो टीवी देखते हैं, टीवी बिना चश्मे के देख नहीं पाता था, लेकिन मैं कल वो अपनी जो डॉक्टर साहब की रिपोर्ट होती है पर्चा, मैं उसे वैसे ही पढ़ने लग गया।
शाम को वो डाइट के लिए, तो बिना मतलब उसके दिखाई देने लग गया। ये लो अचानक देखा नहीं तो पढ़ने लग गया मैं। हाँ, श्रीधर जी ने तो पूरा कल्याण ही कर लिया अपना। और 4 दिन से मैं अब दवाई भी बीपी की नहीं ली सर। चलो बहुत आशीर्वाद भाई श्रीधर जी, अब इसको छोड़ना मत भाई। हाँ ठीक है, बहुत आशीर्वाद। पीछे बहन को देना, अनुलोम विलोम करो पूरा। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम बहन। मुझे 2012 से बीपी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और मुझे 2014 में एंजियोप्लास्टी हुई है। मैं आपको 2015 से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ और मेरा बीपी कम नहीं हो रहा था, तो मैंने अभी यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पर मैं आने से मुझे सांस भी बहुत चलती थी चलने में, पर मैं यहाँ जब से आई हूँ मैं यहाँ पूरा पैदल घूमती हूँ। अब मुझे सांस नहीं भराती है यहाँ पर, और मेरा बीपी भी कंट्रोल हो गया है। मेरा कल बीपी 120/80 आया, और अब मैंने 3 दिन से यहाँ पर आके दवाई नहीं ली। मैं 2 गोली बीपी की रोज लेती थी, मेरा 150 और 100 बीपी रहता था। ले लो। अब बीपी शुगर, बस मुझे अब ये पेट में जलन की बहुत समस्या है स्वामी जी, ये कम नहीं हो रही है। यहाँ से यहाँ तक बहुत जलन होती है। ले लेना मोती पिष्टी। मोती पिष्टी मैंने ली थी और वो चूर्ण के साथ ली थी, अवपित्तीकरण सारा। ना खाली अकेली मोती पिष्टी ले ले। अच्छा, अवपित्तीकरण में भी लौंग होती है ना, तो किसी को मैंने यहाँ डॉक्टर साहब को बोला कि आप मुझे कोई बस्ती दे दो ताकि मुझे जलन बंद हो जाए, पर वो बोलते आपको बस्ती नहीं देना। ना बस्ती लेना है। कौन सी बस्ती लेना स्वामी जी? बस्ती उनको बोलना लौकी का जूस, हाँ, एलोवेरा, हाँ, इसी से दे देंगे। अच्छा ठीक है। एलोवेरा और लौकी का जूस, एलोवेरा और लौकी के जूस की पड़ जाएगी। बहुत जलन हो रही सुबह सब, फिर पूरी ठीक हो जाएगी पूरी। लौकी का जूस, एलोवेरा, और उसमें थोड़ा सा फ्रेश डाल देंगे, भूमि आंवला पुनर्नवा ना, यहाँ मिलता है। हाँ, पूरा ठीक हो जाएगा। अगले वाले भाई को देना। ये मेरे हस्बैंड है स्वामी। स्वामी जी प्रणाम। उज्जैन से आए हम, मध्य प्रदेश उज्जैन से। पुरुषोत्तम मंत्री मेरा नाम है। बाबा जी मेरे को 16 में अटैक आया था, और जब से अटैक आ गया था, डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम आपको गोली लेना पड़ेगी। पर जब से पहला लॉकडाउन लगा तब से मैंने आपको फॉलो किया, और सुबह 2.5 घंटे योग करता हूँ और गौ अमृत लेता हूँ। बस इससे मेरी वो एलोपैथिक दवाई पूरी बंद हो गई। सब दवाएं ब्लड टोटल बंद है। पिछले 6 महीने से दवा खाने एसिड डरा के रखते हैं। पिछले 6 महीने से मैं एलोपैथिक दवाई सब बंद कर दी। एलोपैथिक कोई दवाई नहीं, कोई भी नहीं लेता हूँ। और कोलेस्ट्रॉल ठीक है? बिल्कुल ओके। शुगर सब ठीक है एकदम। नहीं तो ये ब्लड थिनर ना, पूरा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, पूरी ब्लड केमिस्ट्री, लिपिड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल सब गड़बड़ कर देती। ठीक हो गया। अनुलोम विलोम कर लो ना बैठे बैठे। प्रणाम स्वामी जी। मुझे 4-5 साल से घुटनों की तकलीफ थी। मेरे घुटनों में गैप आ गया था और डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मेरा गैप अभी बढ़ा नहीं, उधर का उधर ही रुक गया। आपकी आयुर्वेदिक सब दवाइयाँ खा रही हूँ मैं। नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, पूरा वापस ठीक हो जाएगा, रिपेयर हो जाएंगे घुटने पूरे। हाँ, तो सब व्यायाम सब कर रही हूँ, बैठे बैठे कुर्सी पर बैठ के करती हूँ, पलंग और पर ऑर्थोग्रिड की बस्ती भी ले लेना, और जानू बस्ती भी ले लेना, सब उपचार लेना। इसको प्रमोद को देना। नमस्ते। मेरी आलोचना मेरी करने, देखो मेरे 3 तरह के लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए। एक मेरे घोर शत्रु, अब पूरे तलवार लेके खड़े हैं, बोले बाबा राम, उनका बस चले तो एक दिन जिंदा ना रहने दे। और एक जबरदस्त मित्र, कट्टर समर्थक, पक्के भगत, बाबा रामदेव हमारा भगवान है। और तीसरे बेचारे बीच में खड़े खड़े देख रहे हैं तमाशा क्या चल रहा है। उसमें कुछ लोग आते रहते हैं, कुछ देखते रहते हैं, कुछ बाबा बात तो काम तो ठीक ही कर रहा है, लेकिन फिर ये आलोचना क्यों कर रहे हैं? तो उनको कहते हैं तटस्थ। 135 करोड़ के भारत में 20-30 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो अभी तटस्थ हैं, करते नहीं है। 100 करोड़ लोग ये तो मानने लग गए कि बाबा काम तो ठीक कर रहा है, लेकिन जो शोर मचाने वाले थोड़े से लोग हैं या कुछ आलसी लोग हैं, छोटी सी लिमिटेड संख्या होती है और वो करेंगे, उनका पर्पस यही है। लेकिन वो उनकी जो है ना, वो बोलते बहुत तेज है। जो विरोधी होते हैं ना, वो शोर बहुत जल्दी सुनता है, और जो लाउडली बोलते, हाँ, वो जो शांत है वो नहीं मालूम पड़ता जल्दी। और जो समर्थक है बेचारे बोले मरने दे इसको, हम तो अपना काम कर रहे हैं, चुपचाप लगे रहते हैं। अब विरोधियों की संख्या घट रही है ही नहीं, अब तो मैं कहीं देखता ही नहीं। थोड़े दिनों में मोक्ष हो जाएगा इन सब का। तो योग भगावे रोग માં દરરોજ મારે સાથે योग કરજો અને નિરોગ રહેજો। આજે તો તમે જાત જાતના બધા રોગોને બાબત સાંભળ્યું છે।
આવી જ રીતે સાંભળતા સાંભળતા મારે સાથે યોગ કરતાં કરતાં બધા લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝ, જેનેટિક ડિઝીઝ, ઇન્ક્યુરેબલ ડિઝીઝ, જેને કોઈ દવાઈ નહીં દુનિયામાં, એ રોગો પણ યોગ સે મટશે.